Hello and welcome to Ignited Minds. Today it's 16th of July 2024 and we will be discussing the newspaper analysis. The news articles for today's discussion are highlighted on your screens. You can very well relate to all of these, and as if you are a serious candidate, serious student, serious aspirant, you must be knowing the importance of money bill because it was asked in multiple years in the prelims and mains both. When it comes to trade deficit, this term has been asked already by UPSC, and the terms regarding deficit, whether it's primary deficit, whether it's fiscal deficit, whether it's budgetary deficit, everything has been, not everything, but some of the terms have been asked by UPSC. So this is our topic where UPSC asks questions. India and Nepal relations have been there in a dormant phase, but today we are seeing an article and we will be having an in-depth analysis of the two neighboring nations who have Roti Beti Ka Nata. We'll also see how EEG technology works, what's its significance, and it has completed 100 years of its invention till this date. We'll also see rupee and ruble payments and the two stealth frigates which Russia will be delivering to us soon. There is an article and a new uh, program of ICAR, which is very much important. It's a one scientist, one product program, which we will be dealing in detail. WPI and CPI inflation, we will see what are the differences and how these are calculated. Lastly, we will also see what reforms can be brought in the aviation sector and what are the problems associated to ISRO, because already UPSC has asked a question about the achievements of ISRO. So let's begin the discussion with the word of the day, and the word is nebulous. This nebulous word says lacking definite form or limits, lacking the definition or definite content. Basically, it's cloudy and it's unfixed. That is why when we say that it was a nebula of clouds after the Big Bang theory, in which there was a dust and there were particles, and once it started affecting with its gravity, then the particles turned into lumps, and then the gas lumps turned into solid shapes, and then planets, and then other solar particles of the Earth. Done. But this nebulous word can be used in your day-to-day vocabulary and can enrich your vocab and your speaking skills. Let's start this discussion with our own tradition, that is UPSC Prelims PYQ. This question was asked in UPSC in 2024 itself, and this question asks you about Sanghabhuti. Sanghabhuti, an Indian Buddhist monk who traveled to China at the end of the 4th century AD, was the author of a commentary on. See, the beauty of UPSC is that it has been asking questions on the travelers. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आज तक आ चुके हैं ट्रैवलर्स के ऊपर कि चाइना से ये बंदा आया, इजिप्ट से ये बंदा आया, सेंट्रल एशिया से ये वाला बंदा आया, ठीक है, अफ्रीका से ये बंदा आया. तो दीज हैव बीन क्वेश्चंस इनवर्ड्स. नाउ यूपीएससी आस्क्ड द क्वेश्चन आउटवर्ड्स कि इंडिया से कोई बंदा चला गया चाइना. ठीक है, तो द थीम ऑलवेज रिमेन्स द सेम. यू जस्ट नीड टू आस्क योरसेल्फ what else can be asked in this theme will remain the same. ट्रैवलर्स पे क्वेश्चन आता था, हर ऑल्टरनेट ईयर पे आता था. कभी कभी ट्रैवलर पे क्वेश्चन आएगा, बुद्धिज्म पे क्वेश्चन आएगा, जैनिज्म पे क्वेश्चन आएगा. ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं. नाउ हाउ वाज दिस क्वेश्चन टू बी सॉल्व्ड? इफ यू नो दैट पारामिता एक ऐसा वर्ड है जो यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है. ठीक है, एंड पारामितास आर 10 परफेक्शंस इन बुद्धिज्म. मेक सेंस? पारामितास. सेकंड इज श्रवस्तिवाद. ठीक है, श्रवस्तिवाद is something which is related to Sthavirvadins, because Shravastivad or Shravastivadins, this was the sect which emerged in the second Buddhist council itself. ठीक है, these are two things you need to focus that Buddhism से related यही दो चीजें हैं यहाँ पे
because Visuddhimagga and Lalita Vistara, they are the two things which are related to Jainism. ठीक है? Now you came to 50 and 50. You should be very well understood कि ये जो प्रश्न पारमिता सूत्र है, this is something which is held by one of the bodhisattvas in his hands. ठीक है? जिनके पास ये है, in his hands there is a stone slab जिसमें ये 10 perfections लिखे हुए हैं, प्रश्न पारमिता सूत्र. ठीक है? तो लॉजिकली इफ यू गो बाय द लॉजिक कि बुद्धिज्म से दो ही रिलेटेड है, एंड उसमें से भी दिस प्रश्न पारमिता सूत्र इज रिलेटेड टू सम ऑफ द बोधिसत्वास एंड नॉट टू सम ऑफ द बुद्धिस्ट monks, then the answer will be derived at Shravastivada Vinaya. ठीक है? That is how you derive the answer. This was the answer, and you can go through the explanation also. There were other Buddhist missionaries and Buddhist monks like Kumarajiva, Sangabhuti, Gyanbhadra, Buddhabhadra, Jivagupta, Dharmagupta, Prabhakara Mitra, who went to China. Okay, these are the people who went to China. However, there were pilgrims like Fahim, Yunsan, Itzing, जिन पे यूपीएससी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, जो चाइना से यहाँ आए थे. Done. Let's begin the discussion with this news about money bill. This question, money bill question was asked by UPSC multiple times till date in its prelims questions also and mains questions also. We will see what are the basic nits and grits of money bill and why Congress is welcoming Supreme Court's decision on money bill, and what actually our Honorable Chief Justice of India D.Y. Chandrachud has said. He highlighted this thing. There were some cases which were pending in Supreme Court which actually challenged money bill route. ठीक है? What is this money bill route? Simple. We have our parliament. We have two houses in parliament. One is Rajya Sabha, another is Lok Sabha. ठीक है? Once the ruling party has majority in Lok Sabha, ये लोग करते क्या है? इनको ऑपोजिशन फेस करना पड़ता है राज्यसभा में. ठीक है? और राज्यसभा में अगर इनका मेजॉरिटी नहीं है तो वहां पे ऑपोजिशन फेस करना पड़ेगा, और राज्यसभा में बिल पास नहीं होगा. सो नाउ व्हाट विल दे डू? दे विल ब्रिंग इन अ बिल, क्योंकि लोकसभा में जो स्पीकर है उसके पास एक पावर है कि स्पीकर अलोन हैज दिस पावर टू डिक्लेयर, रिमेंबर द वर्ड्स, डिक्लेयर, देन सर्टिफाई. What do we mean by certify? That he attaches a certificate with the bill that this bill is money bill and nothing can be challenged on that. ठीक है? Once he certifies it, it cannot be challenged. However, judicial review is something which is different. ठीक है? वो इस पे लगता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं लगता है, but that is on the later stage. जैसे अभी लग रहा है judicial review. ठीक है? वो बाद में केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर बात करती है whether it was money bill or not money bill. But the decision of speaker in this case is final. ठीक है? It's final decision. Remember this. He has to attach a certificate to it. He has to declare that a bill is a money bill. Once a bill becomes a money bill, ठीक है? The role of Rajya Sabha tentatively, or you can say the role of Rajya Sabha imaginarily gets eliminated. इसके बाद राज्य सभा का रोल नहीं बचता है अगर कोई भी बिल को पास कर दिया एज मनी बिल. क्यों नहीं बचता है राज्यसभा? हार्डली. व्हाट इट कैन डू इज, ये क्वेश्चन इस साल यूपीएससी के पीवाईक्यू में इसी साल के पेपर में आया था 2024 में कि व्हाट राज्यसभा कैन डू ओवर द मनी बिल्स. ठीक है? व्हाट इट कैन डू, सिंपली इट कैन ईदर सजेस्ट अमेंडमेंट्स. ठीक है? दोज अमेंडमेंट्स कैन बी पास एक्सेप्टेड बाय लोकसभा और नॉट, दैट इज समथिंग डिफरेंट. लोकसभा नहीं भी एक्सेप्ट करेगी तब भी वो पास कर सकती है, लोकसभा एक्सेप्ट करेगी तब भी वो पास कर सकती है, बट राज्यसभा का रोल लिमिट हो जाता है. खत्म कहानी यहाँ पे. ठीक है? नाउ इसी रूट के थ्रू लोकसभा में बहुत सारी बिल्स को पास किया गया, जैसे अमेंडमेंट टू द पीएमएलए एक्ट, फाइनेंस एक्ट 2017 एंड आधार एक्ट 2016. अब इन बिल्स को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो प्रोसेस फॉलो किया गया है to evade Rajya Sabha is something which is unconstitutional. Now, Supreme Court said that yes, we will give a place and we will listen to the pleas which are challenging the money bill route taken by the center to pass some contentious amendments in the parliament. Done. Very well understood. You can use this point
in the legislative practices of parliament and what are the flaws in the between the two houses and bicameralism and parliamentary system. Whatsoever you want to, whatsoever the question asks you, you can use it. ठीक है? Let's discuss a bit more about money bill. ठीक है? Money bill is simply a type of legislation which basically asks for, remember, appropriation. Appropriation of money. What does this mean? Appropriation of money means to withdraw money from consolidated fund of India. सीएफ से पैसा निकाल के खर्च कर देना, एक्सपेंडिचर करना, ठीक है? बस to appropriate money from consolidated fund of India, which is the main fund of the government of India. Money bills, they are typically related to the financial matters such as taxation, public expenditure, public debt. The definition is the items which once included in a bill declares it as a money bill are highlighted in Article 110 of the Constitution. The criteria that a bill should fulfill to become a money bill are some of the particular criteria you should remember. One is it belongs to taxation, tax, that is imposition, abolition, remission, alteration, or regulation of any tax. Why am I highlighting these keywords? Because UPSC this year 2024 asked a question on Article 368 that under Article 368 what Parliament can do. It can alter, it can, there are three words: alteration, variation, and change. I guess three words it asked. I do not remember the exact keywords. Three words it asked. Take a repeal, amend, variation. So people thought variation word wouldn't be there in the article. So that's why I'm highlighting these points. ये जो words हैं इनको याद रखना जरूरी है. Next point is the regulation of borrowing of money or giving or the guarantee of Government of India. Guarantee of Government of India. It also can be declared as a money bill if it deals with the custody of Consolidated Fund of India. It can also be declared as a money bill if it declares any expenditure as charged expenditure on Consolidated Fund of India. What do I mean by charged expenditure on Consolidated Fund of India? See, whenever there is appropriation of money, कि जब भी गवर्नमेंट को पैसा निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बाहर, उनको पैसा चाहिए खर्च करने के लिए, तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है. किससे? लेजिस्लेचर से. लेजिस्लेचर से परमिशन लेने के लिए वो लोग क्या करते हैं? वो एक बिल लेके आते हैं, फिर लेजिस्लेचर में उसको पास करते हैं. उस बिल का नाम होता है अप्रोप्रिएशन बिल या मनी बिल, कि हमें इतना पैसा चाहिए, इसको पास कर दो. बजट में वो लोग ग्रांट्स लेके आते हैं, डिमांड्स लेके आते हैं, लेजिस्लेचर उस पर वोट करता है, वो डिमांड ग्रांट बन जाती है और वो ग्रांट उनको दी जाती है गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव को, तब जाके वो पैसा निकाल के यूज कर पाते हैं. बट देर इज सम एक्सपेंडिचर जिसमें लेजिस्लेचर वोट ही नहीं करता है. ठीक है, क्यों नहीं करता है? बिकॉज वो एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंडिचर कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर है, अगर लेजिस्लेचर ने उस पर वोट करना स्टार्ट किया, इट मींस वो उस एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर रहा है. इसका मतलब ये है जिस नाम पे वो एक्सपेंडिचर हो रहा है, जिस चीज के लिए वो एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो उस चीज को रेगुलेट कर रहा है. इट मींस legislature by means of financial control over the expenditure part of Consolidated Fund of India or the money which is being withdrawn out of Consolidated Fund of India, legislature जो कंट्रोल कर रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को, ताकि एक्सपेंडिचर हो पाए ए बी सी के लिए. ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को रेगुलेट कर रहा है ताकि एक्सपेंडिचर हो जाए ए बी सी के लिए, इज एक्चुअली इनडायरेक्टली कंट्रोलिंग ए बी सी थ्रू फाइनेंशियल पावर्स. ठीक है, तो लेजिस्लेचर का कंट्रोल आ रहा है एबीसी के ऊपर. अब ये एबीसी कौन है? दीज आर इंडिपेंडेंट बॉडीज लाइक सुप्रीम कोर्ट, where independence of the Supreme Court is necessarily to be maintained. और इसको मेंटेन करने के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट
अगर लेजिस्लेचर ने अब इस पे इनडायरेक्ट कंट्रोल बिठाना स्टार्ट किया थ्रू फाइनेंशियल पावर्स, देन इसका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा ड्यूटीज सुप्रीम कोर्ट का। वैसे ही कैग है, ठीक है। तो कुछ एक्सपेंडिचर्स हमने रखे हैं जिसपे लेजिस्लेचर वोट नहीं करता है, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। रिमेंबर दीज वर्ड्स एंड दीज टर्म्स। नाउ द नेक्स्ट एडिटोरियल टॉक्स अबाउट ट्रेड डेफिसिट्स बीइंग वाइडनिंग बाय ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है 9.4% फ्रॉम अ ईयर अगो एज इंपोर्ट्स आउटपेस एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स, इसीलिए हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है। और कितना हुआ है? 9.4%, ठीक है। वाइडेंस 9.4%। तो नाउ लेट्स डिस्कस some basic things about trade imbalance in India and how trade imbalance affects basically the overall growth of a country. See, if your exports are high, exports are more than imports, okay, it means that India is gaining something. What? India is gaining dollar, India is gaining bullion, ठीक है। क्योंकि हम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, हम वहां से पैसा ले रहे हैं। और पैसा किस चीज में ले रहे हैं? हम रुपए के फॉर्म में ले रहे हैं या डॉलर के फॉर्म में ले रहे हैं। इट मींस इंडिया का डोमेस्टिक सेक्टर, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज्यादा होगा, उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि यहाँ का परचेसिंग पावर पैरिटी बढ़ेगा, ठीक है। और हमें जो है पैसा घर में आएगा हमारे, ठीक है। इमेजिन दिस थिंग, पैसा घर में आएगा। while as when we import things, it means हम पैसा बाहर भेज रहे हैं और वहां से सामान खरीद के लेके आ रहे हैं, that is import. So it's always better that कि हमारे exports बढ़े बजाय इसके कि हमारे imports बढ़े। But India is dependent on its oil imports, on its fossil fuel imports, and on its electrical imports, on its pharma imports, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी है जो इंडिया का इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ा देती है, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, एंड वंस द इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट्स, इट्स कॉल्ड एज डेफिसिट, ठीक है। अंडरस्टूड? हो गया। व्हाट आर द नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ दिस ट्रेड इम्बैलेंस और ट्रेड दिस इंपोर्ट मोर देन एक्सपोर्ट ट्रेड डेफिसिट? The negative impacts you can see simply are: first, currency depreciation होता है। What do we mean by currency depreciation? इसका मतलब अगर आपको ज्यादा पैसा बाहर देना पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आरबीआई यहाँ पे बैठा है, इसके पास एक बंदा गया ए, बोला मुझे यूएसए से कोई प्रोडक्ट खरीद के लाना है, ठीक है। तो वी नीड टू पे यूएसए का क्लाइंट, यूएसए में क्लाइंट जो ए का है वो है एक्स। तो ए जो है वो आरबीआई को पैसे देगा, रुपीस देगा। आरबीआई जो है ए को डॉलर्स देगा, ठीक है। तो आरबीआई के पास जो है 4x कम हो गया। अब आरबीआई के पास डॉलर्स है नहीं, क्योंकि ये डॉलर्स ए ने पे कर दिए यूएसए के बंदे को और वहां से सामान लेके आ गया अपने घर सीधा, और इंडिया में हो गया इंपोर्ट। किस चीज का? किसी भी चीज का। फॉर एग्जाम्पल एप्पल का आईफोन है, उसका इंपोर्ट हो गया, या एप्पल जो नॉर्मल सेब होता है उसका इंपोर्ट कर लिया। द पॉइंट हियर इज कि आरबीआई के पास आ गया पैसा, जो कि ये आरबीआई की अपनी करेंसी है, ठीक है। वो कभी भी प्रिंट कर सकता है ना। बट आरबीआई के पास डॉलर जो है वो चला गया आरबीआई से और वो यूएसए चला गया, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म आती है सीनियरेज का। पहली चीज, आरबीआई को एक नुकसान हो गया कि उसने सीनियरेज नहीं कमाया रुपी के प्रिंट करने पे, क्योंकि उसने रुपी प्रिंट किया था तब जब उसके पास डॉलर आया था, ठीक है। आई नो ये आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बट रिमेंबर द टर्म, यू विल इवेंचुअली फाइंड द मीनिंग, जस्ट बी विद मी। आरबीआई का एक नुकसान होगा ये कि ये सीनियरेज नहीं कमा पाएगा। दूसरा नुकसान ये होगा कि जो यूएसए में डॉलर चला गया
वो डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में गया है एक्चुअल में, ठीक है, और इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर चला गया, आरबीआई के पास डॉलर नहीं है। अब आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व होते थे, जो आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व्स है वो कम हो गए, वो डिक्रीज हो गए, डिप्लीट हो गए। जबकि आरबीआई ने ये डॉलर्स जमा करके रखे थे, किस लिए? ताकि ये अपना जो इसका नॉर्मल ऑयल इंपोर्ट है, जो इसका नॉर्मल फॉसिल फ्यूल्स फार्मा, जो इसकी नॉर्मल डिमांड है, इंपोर्ट बिल जो आरबीआई का है, वो पे कर पाए, या गवर्नमेंट की जो इंपोर्ट बिल है वो पे कर पाए, ठीक है। आरबीआई ने ये डॉलर्स मेंटेन करके रखे थे कि अगर कल को शॉर्टेज हो जाए मार्केट में डॉलर की, देन हम डॉलर को सप्लाई करेंगे अंडर आरबीआई's द डर्टी फ्लोटिंग पॉलिसी, ठीक है, कि आरबीआई जो है मैनेज्ड एक्सचेंज रेट पे बिलीव करता है, ऑपरेट करता है कि वी विल मैनेज द एक्सचेंज रेट, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, अगर ये एक्सचेंज रेट ही डिसबैलेंस में आ जाती है या इम्बैलेंस में आ जाती है ड्यू टू दिस डेफिसिट, देन व्हाट हैपेंस इज एक्चुअली करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है। क्योंकि इफ यू सी, ए ने रुपीज दिए एंड व्हाट इट वांट्स, डॉलर। बी भी आया, ये ए ने किया, बी आया उसको भी डॉलर चाहिए, सी आया उसको भी डॉलर चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और बाहर जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो बस डॉलर में होगी। इट मीन्स टू मेनी पीपल फेचिंग अ स्मॉलर करेंसी, वन गुड। ये वैसी बात है, इन्फ्लेशन जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इन्फ्लेशन में क्या, अभी आगे पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा लेके आते हैं और एक ही चीज उनको खरीदनी होती है और वो मार्केट में चीज होती ही नहीं है, तो वही चीज हो जाएगी डॉलर के साथ। डॉलर का वैल्यू बढ़ जाएगा, डॉलर का प्राइस बढ़ेगा, नॉट वैल्यू, प्राइस बढ़ेगा, और रुपी का प्राइस इवेंचुअली कम हो जाएगा, क्योंकि ए ज्यादा रुपया देगा एक डॉलर के लिए, बी उससे ज्यादा देगा, सी उससे ज्यादा देगा, तो रुपी का वैल्यू जो है वो डिप्रिशिएट होता जाएगा। दिस इज करेंसी डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड एक्सटर्नल डेट, ठीक है। क्यों इंक्रीज हो जाएगा एक्सटर्नल डेट? बिकॉज आरबीआई को अब डॉलर कहीं ना कहीं से या तो लोन करना पड़ेगा, या जो हमारे इंपोर्टर्स है वो भी कहीं ना कहीं से ये जो उनको पैसा चाहिए, डॉलर्स चाहिए, वो कहीं ना कहीं से इसको डेट पे ले लेंगे, एक्सटर्नल डेट होगा। दिस विल लीड इंडिया टू बोरो फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, ठीक है। प्लस इतना ही नहीं होगा, डेट ही नहीं बढ़ेगा, इससे हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स भी बढ़ेंगी, ठीक है। और इंटरेस्ट पेमेंट्स ही नहीं बढ़ेंगी, जबकि फॉरेन डेट का वैल्यू बहुत ज्यादा हो रहा है, प्राइस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमें इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। इट्स नॉट ओनली इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, ठीक है, फॉरेन करेंसी की। थर्ड इज इट विल रिड्यूस द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, क्योंकि अगर इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ गई है ना, सब लोग इंपोर्ट ही कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो डिसइंसेंटिवाइज हो जाएगी और वो कम हो जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीओपी क्राइसिस आ जाएगा, ठीक है। देयर आर अदर पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन, दैट इज कि मेजर्स क्या लिए जाए, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इंडिया क्या क्या कर रहा है इस चीज में, बट दैट इज समथिंग व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट टाइम। Let's move to the editorial about India and Nepal relations. Do not confuse yourself with this term Big Brother. ठीक है, ये वो वाला बिग ब्रदर नहीं है जो हमारे लिए लाइक गार्डियन होता है, नहीं। दिस बिग ब्रदर टर्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस इज यूज्ड इन a negative connotation, that someone is acting as a big brother, that is someone is scolding me, someone is trying to punch me down, someone is trying to push me down, someone is trying to control me as a big brother, not as a father, ठीक है। तो big brother to the brother, a Nepal India reset, that this editorial is written by a person who is editor of Himal South Asian magazine and lives in Kathmandu, a person who is from Nepal. Just to make sure that you know things, that India Nepal jo relations hai, it have been in a like some kind of sober state कि ठीक है ट्रैवर्स कर रहा है उधर इधर, not big changes post the Oli dispute। ओली के साथ जब डिस्प्यूट हुआ था तब से लेके आज तक इट्स लाइक नॉर्मल ओनली।
Now the point is Nepal. Nepal shares border with Indian state of Uttarakhand, UP, Bihar, Sikkim and West Bengal. ठीक है, here यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर है वेस्ट बंगाल के साथ. ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, वन थिंग. एंड नेपाल ऑल्सो शेयर्स अ लॉन्ग बॉर्डर विद चाइना, चाइना के तिब्बत रीजन के साथ. ठीक है, नॉट विद भूटान. रिमेंबर नेपाल डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान. Here if you see there is a I'll show you an area over here. ठीक है, the white dot which is known as the Kalapani dispute. ठीक है, there is the Kali river, the लिम्पियाडूरा रीजन इसको बोलते हैं, जहां पे इंडिया और नेपाल का एक डिस्प्यूट चल रहा है about the triangle. Now what this editorial talks about, we will first see the points highlighted by editorial. Second, then we will go to the background of India-Nepal relations and some other points which we should remember. Turbulent relations थी हमारी पीएम मोदी एंड ओली के साथ उस टाइम पे 2015 के टाइम पे, but the main issue with Nepal was adoption of the new constitution of Nepal, जिसमें there was the 13th amendment, जो कंटेंशन वाला पॉइंट था हमारे लिए कि उसको इंक्लूड कर लो, बट नेपाल इंक्लूड नहीं कर रहा था. दैट वाज समथिंग व्हिच वाज इन डिबेट बैक देन. द करंट सिचुएशन इज दैट both Mr. Modi and Oli have returned to power and presenting an opportunity to reset their relations now. There are concerns about India's involvement in Nepal's politics and governance, but India suggests that this editorial suggests that India and its neighborhood first policy needs a revision regarding Nepal. What's neighborhood first policy? We will also see that. Okay. Further, this editorial talks about the economic aspects of the relations, that India's approach is based more on power than the mutual benefits, which shouldn't be there. There should be mutual benefits. And what are the economic aspects of this relation? We'll see that. The previous Prime Minister, Pushp Kamal, also criticized for being too accommodating to India's interests. He was earlier criticized, and that is the main issue, that Nepal has to play its cards well. Okay, between the two, Nepal has to think about China also and India also, because uh, it cannot have, or it cannot uh, afford a situation where China starts the territorial aggression into its territories, because it's not actually a state which can afford that. Okay, one thing. And the suggestions which this editorial talks about, will be seeing these, uh, that editorial बोल रहा है हमें that there should be an eminent persons group, EPG. ये एक एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप है जिसकी रिपोर्ट जो वो हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए टू एनहांस द बायलैटरल रिलेशंस. दिस एमिनेंट ग्रुप वाज अर्लियर इंस्टॉल्ड एंड अर्लियर इट वाज डिस्कस्ड कि क्या क्या किया जा सकता है इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए. ठीक है, एंड इंडिया शुड स्टिक टू इट्स पंचियल principles of non-interference into Nepal's internal affairs. ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए. That is what the editorial talks about. And India should recognize Nepal as a separate sovereign nation which is working towards a more balanced and mutually beneficial relationship. Done यहाँ तक. Now, what are the important points when we talk about India-Nepal relations? ठीक है, we start with Buddhism. ठीक है, because Nepal has been the birthplace of Lord Buddha. Lumbini वो जगह है जहाँ पे बुद्धा का जन्म हुआ. Buddha's birthplace, which is present in Nepal only. India and Nepal share a roti beti का रिश्ता, that is both the livelihood needs and some consensual ties are there in the border areas of Nepal. ठीक है, there is a community, मधेसी community, और नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे there is this thing that they marry each other very frequently.
Although there are other benefits also which are associated to this marriage, that is the citizenship and all. But yes, the roti beti ka rishta has been there, and apart from the formal ties, India and Nepal signed Indo-Nepal Treaty of Peace and Friendship in 1950. This treaty forms the bedrock of special relations that exist between India and Nepal. Remember this thing. This treaty establishes first national treatment for both Indian and Nepali businesses, कि जैसे हम अपने बिजनेस को ट्रीट करेंगे, ठीक है, वैसे ही हम नेपाल के बिजनेस को भी ट्रीट करेंगे. लाइक once imported, the foreign goods would be treated no differently than the domestic goods. कि जैसे हमारे डोमेस्टिक गुड्स हैं वैसे ही नेपाल के गुड्स को भी एक्सेस मिलेगा हमारे मार्केट में. इट ऑल्सो गिव्स नेपाल एक्सेस टू वेपनरी फ्रॉम इंडिया, कि नेपाल जो है हमसे वेपन्स खरीद सकता है. These are some of the provisions of this treaty. If we talk about Nepal, Nepal is basically studied from two different angles. One is that it's important for India's national security, and second is the place and India's role perception in international politics. That how India can portray itself on international politics. Okay. That thing can be well established as a discourse once we deal with Nepal. Okay. Because Nepal is in the middle of the Himalayas and it shares border with both India and China. Possibly it does act as a buffer state. Okay. Uh, Most probably it's not a part of the neighborhood policy. Not basically, it is a part of neighborhood policy, but the neighborhood policy which was given by Chanakya, that your immediate neighbor is your natural enemy, this cannot be implemented in Nepal. Okay? It's not our natural enemy, but yes, the neighbor's neighbor is a natural enemy of ours. Okay? Here, the China. Basically, China is not a natural enemy of ours, but there is a power competition between the two when it comes to the hegemony in international affairs. Okay? One more thing is this. Second thing, when we talk about Nepal, there are many rivers in which India is a lower riparian state, okay, which have high ecological and hydropower potential, which India wants to develop dams over these rivers and harness their economic potential, help itself and Nepal both in achieving such objectives. If we talk about trade with Nepal, okay, it was around $8.27 billion in 2019. If we talk about the bilateral trade between the two, India's firms, they are engaged in Nepal in manufacturing sector, banking sector, dry ports, power sector, tourism sector, and whatnot. Nepal, being a landlocked country, needs an exit towards the sea, and Nepal has undertaken various connectivity programs to enhance the people-to-people linkages with India. India or Kathmandu have lastly signed an MOU between both the governments for laying an electric rail track which links Kathmandu and Raxaul in India. काठमांडू से लेकर रक्सौल तक एक रेलवे ट्रैक भी बिछाया गया लास्टली. ठीक है. There are two peaks. ठीक है. And India is looking to develop inland waterways in Nepal. और यहाँ पे करेंगे क्या हम, जो सागरमाथा, माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा बोलते हैं नेपाल में. ठीक है. दैट इज एक इनलैंड वाटरवे बनाएंगे. ठीक है. जो सागरमाथा से लेके सागर तक होगा. सागरमाथा इज माउंट एवरेस्ट and Sagar is Indian Ocean. That is how we are planning to develop. When you talk about defense cooperation, there is exercise Surya Kiran, which is a joint military exercise with Nepal. The Gorkha regiment of Indian Army
आर रेज्ड पार्टली बाय द रिक्रूट्स फ्रॉम द हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नेपाल। ठीक है, जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां से भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं इन आर गोरखा रेजिमेंट। ठीक है, one more thing which is critical to remember, that is the three sister city agreement। ठीक है, थ्री सिस्टर सिटी एग्रीमेंट फॉर ट्विनिंग ऑफ काठमांडू, वाराणसी, लुम्बिनी, बोधगया, जनकपुर एंड अयोध्या। ठीक है, हम करेंगे क्या, जैसे काठमांडू और वाराणसी, लुम्बिनी और बोधगया, जनकपुर और अयोध्या, काठमांडू नेपाल में है, वाराणसी इंडिया में है, इन दोनों सेंटर्स को डेवलप करेंगे। लुम्बिनी नेपाल में है, बोधगया इंडिया में है, दोनों को बुद्धिस्ट थीम्स पे डेवलप करेंगे। अयोध्या और जनकपुर, इन दोनों को हिंदुइज्म या दी अवतार राम और द लॉर्ड राम, इनके थीम्स पे डेवलप करेंगे। दैट इज द थ्री सिस्टर सिटी एग्रीमेंट फॉर ट्विनिंग ऑफ दीज सिटीज दैट दे विल लुक अलाइक। ठीक है, so these are some of the points which you need to remember। there are engagements over जहाँ पे इंडिया और नेपाल एक जगह लेके आते हैं अपने issues, and they converse with each other, they hold summits like BIMSTEC का ये दोनों पार्ट है, NAM का ये दोनों पार्ट है, सार्क में भी इन दोनों का पार्टिसिपेशन है। ठीक है, रिसेंटली 2019 में 2019 में, I'll just rub it off later, there is Arun 3 hydroelectric project which was approved by the Indian cabinet in the Nepal, और वहां पे अरुण रिवर है जिसके ऊपर ये बनेगा। दिस इज अ 900 मेगावाट प्रोजेक्ट। सिमिलरली देयर इज सतलुज जल विकास निगम लिमिटेड, जो इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंड गवर्नमेंट ऑफ नेपाल both have signed an MOU to build, own, operate and transfer the projects, that is an MOU to build, own, operate and transfer. There will be construction of projects by Satluj Jal Vikas Nigam for 30 years, including the 5 years of construction। ठीक है, इंडिया ने recently the visit of Prime Minister Narendra Modi, he performed शिलान्यास। शिलान्यास एक सेरेमनी होती है टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एंड कंस्ट्रक्शन किस चीज का करना है, बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज इन, दिस इज एन इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज इन लुम्बिनी। ठीक है, मोनेस्टिक जोन, दिस सेंटर विल बी बिल्ड। ठीक है, एन इंटरनेशनल सेंटर इन लुम्बिनी। ठीक है, so these are some of the important points which you need to remember further। I don't think there is anything which we can discuss। हाँ, जब हम international relations discuss कर रहे होंगे तो then we can see what are the other points about this। moving to this editorial, I want you just to understand what it is and how it came to figure। nothing more than that, because UPSC never asked too much in detail about science। what is EEG? EEG, it actually marks 100 years in 2024 for the centenary of the first human EEG, which was done by German physiologist Hans Berger in 1924। What is this EEG? It's actually electroencephalography। This electroencephalography measures the electrical activity in brain which is generated by neurons। Remember these points। This EEG visualizes the movement of electrically charged particles, that is ions, in the brain। The applications can be that it's used in clinical diagnosis of epilepsy, anesthesia effects, sleep patterns, neurological activities, and other things। The research includes neuroscience, cognitive psychology, neuro-linguistic, neuromarketing, and brain-computer interface। Very very important, very important that brain-computer interface में ये काम आता है। ठीक है, यूजुअली जब भी यूपीएससी का क्वेश्चन आता है अबाउट दिस
application part, it becomes important that you should remember this thing. Application of new and evolving technologies usually encompasses multiple aspects. तो usually उसका आंसर होता है all of the above. ठीक है, remember this thing. And how does it work? It works on the frequencies and the activities of neurons in the brain. ठीक है. This editorial is about India and USA having doubled their rupee ruble payments in 2024. So this agreement is basically the India and Russia, इनका ट्रेड बढ़ गया आपस में. अभी अगर आपने सुना होगा, 2 दिन पहले की न्यूज है दैट रशिया सेंट 2 trains via INSTC to India and these were full of coal. ठीक है, 2 trains वहां से लेके यहाँ आ गई via INSTC and they were full of coal. That is how much important INSTC becomes now. और आपको इसका मैप बनाना होगा, INSTC कहाँ कहाँ से पास होता है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेशंस है जहाँ पे जो INSTC पे लाई करते हैं. वी विल डिस्कस INSTC once it comes in news. That is something secondary, but you need to here remember the rupee ruble payments in 2024. ठीक है, they have doubled rupee Indian and ruble Russian. ठीक है, rupee deposits by Indian corporates have also increased multifold in 2024 and the increase was around 80% in the first half of 2024. There is a 100 billion mark which is set by PM Modi in the recent Russia India summit जो इसी महीने हुई है, अभी 2-4 दिन पहले. उसमें पीएम मोदी ने ये टारगेट सेट करके आए दैट 100 बिलियन मार्क टच करेंगे हम बहुत जल्दी रशिया के साथ व्हेन इट कम्स टू द बायलैटरल ट्रेड. ठीक है, वी आल्सो हैव सीन कि यूएसए और वेस्टर्न नेशंस उनने भी थोड़ा बहुत आपत्ति जताना स्टार्ट कर दिया है अबाउट आर दीज थिंग्स, अबाउट आर इंक्रीजिंग एंगेजमेंट्स विद रशिया. ठीक है, there is one more news about Tushil and Tamal. These are 2 frigates which will be delivered by Russia to India in the upcoming months of September and February respectively. ठीक है, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है. पहला है रूपी रबल एग्रीमेंट, दूसरा है तुशिल एंड तमाल और तीसरा है INSTC. ठीक है, रेस्ट जो इंडिया रशिया से रिलेटेड स्टैटिक पार्ट में पूरा न्यूज है वो हमने पिछले हफ्ते के न्यूज़पेपर डिस्कशन में अच्छे से डिस्कस किया है. यू कैन गो थ्रू एंड लुक फॉर दैट डिस्कशन. स्टैटिक भी कवर किया है और करंट भी कवर किया है, 2 डिस्कशंस में अलग अलग. एक में स्टैटिक पूरा कवर किया है, दूसरे में करंट पूरा कवर किया है. रिमेंबर द नेम ऑफ दीज 2 फ्रिगेट्स. ये आपको कल को न्यूज़पेपर में नहीं मिलेंगे, ये मैगजीन्स में नहीं मिलेंगे, मोस्ट ऑफ द मैगजीन में नहीं मिलेंगे, और दो हमारी मैगजीन में मिल जाएगा क्योंकि मैं करा रहा हूँ और मुझे पता है कि न्यूज़ में आया है और मैं करा दूंगा. ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज अबाउट ICAR. ठीक है, ICAR 16 जुलाई 1929 को हमने रजिस्टर कराया था एज अ सोसाइटी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. इट्स एन ऑटोनॉमस organization which comes under the Department of Agriculture, Research and Education. This comes under the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, Government of India. ICAR is headquartered in New Delhi. With ICAR, there are 102 institutes and 71 agricultural universities which are spread across the country. ICAR is the apex body which coordinates, guides, manages research and education in the agricultural field, including horticulture, fisheries, animal science in the entire country. ICAR has played a pioneering role in ushering the green revolution past. Lately, it also helped in increasing the food grains by 5 to 6 times, horticultural crops by 10 times. Remember this point. ICAR पहला
ग्रीन रेवोल्यूशन में हेल्प किया, ठीक है। दूसरा, फूड ग्रेन्स 5 to 6 टाइम्स बढ़ गया। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स 10 टाइम्स बढ़ गया। फिशरीज का प्रोडक्शन, मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्शन इनकी रिसर्च की वजह से इतना ज्यादा बढ़ गया, 16 टाइम्स बढ़ गया। मिल्क का प्रोडक्शन 10 टाइम्स बढ़ा है। एग्स का प्रोडक्शन 52 टाइम्स बढ़ा है फ्रॉम 1950 टू 2017। ये डेटा बाद में नहीं मिलेगा, इसको याद कर लो और अपने पास रख लो। अब ये डेटा मैं क्यों बोल रहा हूँ, पहले रीजन ये है कि ICAR अभी वहां पे एक फेस्ट चल रहा है, ठीक है, जहां पे देयर इज दिस एग्जीबिशन काइंड ऑफ थिंग, जहां पे ICAR अपनी टेक्नोलॉजीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि हमने ये चीजें की है। वहां पे बहुत सारे फार्मर्स आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं, एग्जीबिशन है शॉर्ट में, ठीक है। नाउ आई वांट यू टू रिमेंबर देयर इज वन मोर प्रोग्राम जो इसरो आज लॉन्च कर रहा है, जिसका नाम है वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम कर क्या रहे हैं ये एक ग्रुप बना रहे हैं साइंटिस्ट्स का, जिसमें रिसर्चर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, एक डीन होगा, एक फैकल्टी होगी, 5-6 लोग होंगे, एक टीम बनाएंगे, उनको एक प्रोडक्ट देंगे कि आपको इस प्रोडक्ट को अच्छा बनाना है, इस प्रोडक्ट पे रिसर्च करना है, इसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी बाहर के देशों में है जो इस प्रोडक्ट के साथ अटैच्ड है या इन्वॉल्व है, और इंडिया में इस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन, इस एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट है इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इसको इंक्रीज करने के लिए, इसको बेटर बनाने के लिए, क्लाइमेट रेजिस्टेंट बनाने के लिए हम क्या क्या रिसर्च कर सकते हैं, कैसी कैसी चीजें लेके आ सकते हैं, वेदर इट्स फर्टिलाइजर, वेदर इट्स न्यूट्रिएंट्स, वेदर इट्स ग्राफ्टिंग, जो कोई भी चीज हम कर सकते हैं वो करना है। तो पहली चीज तो ये है। दूसरा, इसरो ये ICAR is also working to develop 100 new seed varieties and 100 farm technologies in 100 days as a part of center's 100-day action plan, ठीक है। ये वो एक्शन प्लान है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है फॉर 100 डेज इन द फर्स्ट आफ्टर दे कम टू पावर, कि व्हाट दे कैन डू इन द 100 डेज। तो दैट इज व्हाट ICAR हैज आल्सो अडॉप्टेड कि 100 डेज में हमें दो चीजें करनी है, 100 सीड वैरायटीज लेके आनी है और 100 फार्म टेक्नोलॉजीज लेके आनी है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है इस न्यूज से। रेस्ट हमने इसका स्टैटिक डिस्कस किया, हमने इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस की। ICAR ने recently it is also administering what the farmer innovation fund, ठीक है। ये फंड इनोवेशन के लिए, फार्मर्स के लिए। We do celebrate on 23rd of December किसान दिवस, जिसको हम नेशनल फार्मर्स डे भी बोलते हैं। दिस किसान दिवस जो 23rd दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, बेसिकली क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज इट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह, who was the former Prime Minister of India once upon a time. Dr. Norman E. Borlaug was the winner of Nobel Prize in 1970s for his work in the Green Revolution, and he is also known as the father of Green Revolution, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एंड नॉर्मन ई बोर्लो, ये भी याद रखना है। लास्टली, वर्ल्ड फूड प्राइज। World Food Prize is also known as the Nobel Prize of Food and Agriculture, which was given to Dr. Ratan Lal in 2020. Dr. Swaminathan is the father of India's Green Revolution, and he was the first recipient of this World Food Prize in 1987, ठीक है। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है किसान दिवस के साथ। वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को,
एंड इसका एम क्या है कि हंगर को कम करना है, ग्लोबल हंगर को कम करना है। और SDG 2 है हमारा, जो जीरो हंगर के बारे में बोलता है। द टारगेट ऑफ SDG 2 इज जीरो हंगर। ठीक है, दीज वर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। लास्टली वी हैव दिस इन्फ्लेशन से एक न्यूज अबाउट, नॉट लास्टली, इसके बाद दो और न्यूज है हमारे पास। होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन सोज टू 16 मंथ्स हाई, कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो ऊपर चला गया है, इन्फ्लेशन बहुत ऊपर चली गई है, सोर्स मतलब हाई हो गई है इन्फ्लेशन। तो लेट्स जस्ट हैव अ लुक अबाउट होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड दिस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट collects data about wholesale price and consumer price index both, कि कंज्यूमर लेवल पे क्या प्राइस है और होलसेल लेवल पे क्या प्राइस है, दोनों का डेटा कलेक्ट करते हैं ताकि हमारे पास ये कंपैरिजन आ जाए कि इन्फ्लेशन एक्चुअल में हो कहाँ पे रही है। ठीक है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI ये चेंजेस देखता है गुड्स विच आर सोल्ड ट्रेडेड इन बल्क बाय होलसेल बिजनेसेस इन इंडिया। ये होलसेल प्राइस इंडेक्स पब्लिश कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर विच इज इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, दिस इंडिकेटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन इंडिया। द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ दिस इंडिकेटर इज कि ये बस गुड्स को इंक्लूड करता है। ठीक है, उन गुड्स को इंक्लूड करता है, लाइक होलसेल प्राइस इंक्लूड करता है गुड्स का जो कि नॉर्मल पब्लिक नहीं खरीद रही है। ठीक है, और जो बेस ईयर है होलसेल प्राइस इंडेक्स का, इट्स 2004, इट वाज 2004-5, बट नाउ इट्स 2011-12। ठीक है, और ये चेंज आया था 2017 में। 2017 के बाद से इट्स 11-12 विच इज द बेस ईयर ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये तीन चार फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के ऊपर। नाउ कम्स द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ईयर लॉन्ग पर्सपेक्टिव देखता है रिटेल बायर का, कि रिटेल लेवल पे कैसे चल रहा है काम, कितना प्राइस है, ऊपर गया नीचे गया। इसको रिलीज करने वाला कौन है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, NSO इसको रिलीज करता है। CPI इज जो है इसको कैलकुलेट कौन करता है? CPI कैलकुलेट द डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज like food, medical care, education, electronics, the other things जिनको केटर करता है CPI। अभी CPI के चार टाइप्स है जो आपको याद रखना है। ठीक है, पहला है CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर, CPI फॉर रूरल लेबरर एंड CPI फॉर रूरल प्लस अर्बन कंबाइंड। चारों याद रखने। The first three are compiled by Labour Bureau, which comes under the Ministry of Labour and Employment। ठीक है, मैं इतना शॉर्टकट में इसलिए लिखता हूँ ताकि आप बस रिवाइज कर पाओ, आपके दिमाग में रह जाए चीजें, बजाय इसके कि बस पेपर पे लिखते चले जाएं। ठीक है, एंड अर्बन प्लस रूरल जो कंबाइंड है, ये कौन लॉन्च करता है या ये कौन कंपाइल करता है? ये NSO कंपाइल करता है, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लान इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी। CPI का बेस ईयर इज 2012। अंडरस्टूड? Ministry of Labour and Employment released recently a new series of CPI indexes with base year 2016। ये याद रखना, अभी रिसेंटली रिलीज किया था उन्होंने। ठीक है, और ये भी याद रखना दैट CPI का जो डेटा है इज यूज्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी MPC टू कंसिडर एंड टारगेट इन्फ्लेशन एंड सेट इट्स इन्फ्लेशन टारगेट्स। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का काम है ना इन्फ्लेशन टारगेटिंग करना, तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए वो जो डेटा यूज करते हैं वो CPI का डेटा होता है। इससे पहले UPSC ने क्वेश्चन पूछा है 2020 में अबाउट CPI एंड WPI। क्वेश्चन वाज कि
जो सीपीआई का वेटेज है, वेटेज ऑफ फूड इन सीपीआई इज हायर देन होलसेल प्राइस इंडेक्स। फूड का वेटेज सीपीआई में ज्यादा है और होलसेल प्राइस इंडेक्स में कम है। होलसेल प्राइस इंडेक्स डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज विच सीपीआई डज, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। RBI has now adopted wholesale price index as the key measure of inflation and to decide on changing the key policy rates। ठीक है, पढ़ लिया यहाँ पे कि RBI होलसेल प्राइस इंडेक्स कंसिडर करता है, नहीं वो सीपीआई कंसिडर करता है। ठीक है। Lastly, there is an editorial about aviation sector of India and aviation sector of India पे ये editorial कुछ रिफॉर्म्स तो बता रहा है, ठीक है, कि हमें डबल करना है अपनी फ्लीट को। ठीक है, 1400 एयरक्राफ्ट हमारे होने चाहिए 2030 तक कंट्री में, ये कंट्री की जो एयरलाइन फ्लीट्स है टोटल में। इट ऑल्सो सेज कि इंडिगो ने भी प्रॉफिट दर्ज किया है, डोमेस्टिक ट्रैफिक जो है वो भी बढ़ गया है 13% से, इंटरनेशनल ट्रैफिक 22% से बढ़ गया है। एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन जो है अराउंड $11 बिलियन की है। ड्यूअल एयरपोर्ट सिस्टम, ये याद रखना, ड्यूअल एयरपोर्ट सिस्टम क्या है, नेशनल कैपिटल रीजन में और मुंबई में हमने दो तीन एयरपोर्ट्स बनाए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स दो। ठीक है, और नॉन मेट्रो सिटीज में भी एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपको याद रखने होंगे। शायद आपको अगर क्वेश्चन आता है, नहीं भी आता है तब भी आप इंडियन इकोनॉमी में ये लिख सकते हो कि हमें basically there is a specific topic about transport। ठीक है, और ग्रीन ट्रांसपोर्ट और ग्रीन like flights, because aviation sector has been in news since climate change, कि जितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग एविएशन सेक्टर से होता है उतना बाकी सेक्टर से नहीं होता है। दैट इज वन इशू विच हैज बीन इन डिस्कशन इन न्यूज़पेपर्स बहुत टाइम से अब, तो वो भी आप देख सकते हो, वहां पे भी ये पॉइंट आ सकता है। प्लस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या क्या चेंजेस लाई जा सकती है, वहां पे भी ये पॉइंट आ सकता है। और इंडियन इकोनॉमी में एविएशन सेक्टर एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो हम पढ़ते हैं यूजुअली डिटेल में। इफ क्वेश्चन हैपेंस टू बी सो, वी कैन यूज these points। There are some challenges with regard to aviation sector। स्किल शॉर्टेज है हमारे पास, न्यू पायलट ड्यूटी नहीं है, रेस्ट की नॉर्म्स नहीं है, थोड़े बहुत एयर कंट्रोलर, सिक्योरिटी, सेफ्टी पर्सनल का हमारे पास स्टाफ नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है। पॉलिसी रिकमेंडेशंस विच हैव बीन हाईलाइटेड बाय दिस एडिटोरियल फॉर द अपकमिंग बजट, कि अपकमिंग बजट में हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि फास्ट ट्रैक प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा 25 एयरपोर्ट्स का एटलीस्ट। ठीक है, विच इज ऑलरेडी under the national monetization plan। You can read about national monetization plan which is a long term goal of government of India। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, when we talk about the aviation sector of India, ठीक है, when we talk about the aviation sector of India, India's aviation boom has been there because India is third largest domestic aviation market। after USA and China, India has third largest domestic aviation market after USA and China। The industry has undergone transformation। ठीक है, and if you see the infrastructural developments in India, India's airports have witnessed a transformation, doubling its operational airports। like हमारे पास 74 एयरपोर्ट्स थे 2014 में, और हमारे पास आज 148 एयरपोर्ट्स है इन 2023। ठीक है, डबल कर दिया हमने इतना कैपेसिटी। और ये कैसे किया, या इतना ज्यादा बूस्ट क्यों हुआ एविएशन सेक्टर का? बिकॉज सबसे पहले तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जिसका नाम था उड़ान, ठीक है, जिसका पूरा नाम था क्या, उड़े देश का आम नागरिक, वॉज लॉन्च्ड इन 2016। और 2016 में जो ये स्कीम लॉन्च की गई थी, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, टू रिवाइव द एग्जिस्टिंग एयर स्ट्रिप्स एंड एयरपोर्ट्स। ठीक है, और पोस्ट कोविड हमने देखा पैसेंजर ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, देर आर अराउंड 29% इंक्रीज इन द पैसेंजर्स। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने भी ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का भी एक ये टारगेट है, दैट इनिशिएटिव टुवर्ड्स नेट जीरो
emissions of airport in country. Airport operators have been advised to map their carbon emissions and work towards carbon neutrality. Okay. There are greenfield airports which are being built to encourage and to prioritize their carbon neutrality and net zero emissions. ठीक है, और 66 ऐसे इंडियन एयरपोर्ट्स है which are operating on 100% green energy. ठीक है, 100% green energy. Remember this. ठीक है. So what are the challenges which are faced by Indian aviation industry? One is the ATF, that is the aircraft turbine fuel, which is expensive, and the expenses of this fuel are around 50 to 70% of the airline's operational cost. ठीक है. और दूसरा है कि डॉलर डिपेंडेंसी है कि हमें डॉलर से ही मतलब पूरा जो करना पड़ता है, लाइक इंटरनेशनल जितनी भी ये होती है, इंटरनेशनल जो भी होता है, लाइक द फ्लाइट्स एंड द इंटरनेशनल ट्रैफिक जो जाता है इसके थ्रू, एयरलाइंस के थ्रू, वहां पे डॉलर में ही ट्रेड करना पड़ता है और वहां पे डॉलर में ही ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती है। एंड जब ये डिपेंडेंसी डॉलर पे होती है तो डॉलर एक्चुअल में फ्लक्चुएटिंग इकोनॉमी है और डॉलर का जो रेट है वो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करता है प्रॉफिट मार्जिन को जो एयरक्राफ्ट में होता है। देयर इज कट थ्रू प्राइसिंग कि एक एविएशन या एक जो ये होगी एयरलाइन वो आपको कम पैसे पे दे देगी, दूसरी मतलब हर एक आपको वही आप अगर डोमेस्टिक का देखें तो वही 1000 से लेके 500 तक का ही प्राइस वेरिएशन होता है। आप इंटरनेशनल का देखें तो वही 5000 टू 10,000 का ही वेरिएशन होता है इसमें प्राइसिंग में, और कभी कभी तो उतना भी नहीं होता है ना। तो ये सब चीजें हैं जो एविएशन सेक्टर को एक चैलेंज पोज कर रही है इंडिया में। लास्टली वी हैव दिस एडिटोरियल अबाउट इसरो। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से, एंड इसीलिए मैंने आपके लिए इसको यहाँ पे कट शॉर्ट करके एक समराइज करके दिया हुआ है कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, एडिटोरियल क्या बोल रहा है? एडिटोरियल बोल रहा है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इसरो में, एक प्रॉब्लम है इसरो में, एक चैलेंज है। और चैलेंज क्या है? जो कि जो इसरो के चीफ है, चेयरमैन है एस सोमनाथ, उनने खुद हाईलाइट किया है कि हमारी जो है लॉन्च व्हीकल कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, 3 टाइम्स है देन व्हाट वी करंटली डिमांड। जो मार्केट में डिमांड है, सी वन इज लॉन्च व्हीकल, ठीक है, दिस इज लॉन्च व्हीकल, ठीक है, इस लॉन्च व्हीकल में बूस्टर्स होते हैं, बाकी सब चीजें होती है, ठीक है। दिस लॉन्च व्हीकल कंटेन्स सैटेलाइट्स, ठीक है, जो सैटेलाइट को लेके जाता है। अब सी देयर इज अ प्रॉब्लम, अगर आपके पास लॉन्च व्हीकल है और किसी को सैटेलाइट चाहिए ऊपर भेजना है, then only you can lend your launch vehicle and they will give you their satellite, and both of these can go to space and then place that satellite into the space orbit. But what happens actually is कि आपके पास लॉन्च व्हीकल तो है बट मार्केट में किसी को सैटेलाइट भेजना ही नहीं है, किसी को जाना ही नहीं है, किसी को स्पेस टूरिज्म पे नहीं जाना है, किसी को ह्यूमंस को नहीं भेजना है ऊपर, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। इसरो ग्रो कैसे करेगा जब उसके पास लॉन्च व्हीकल तो है? इसीलिए इसरो ने अभी स्टार्ट किया था स्मॉल स्केल लॉन्च व्हीकल जो है उनका प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, एसएसएलवी का प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। इसीलिए जो है इसरो की प्राइवेट विंग्स आ रही है ना, जो लेटली हमने देखा भी था, 2 साल डिस्कशन चला कंटिन्यूअसली 20, 21, 22 तक। नाउ द पॉइंट इज इसरो के पास 4 मेन लॉन्च व्हीकल्स हैं। कौन कौन सा लॉन्च व्हीकल है हमारे पास? जीएसएलवी है, पीएसएलवी है, एसएसएलवी है और एलवीएम है, ठीक है, मार्क थर्ड लॉन्च व्हीकल, मार्क थर्ड। दीज आर देयर बट वी स्टिल फेस चैलेंजेस जब हमें हैवी सैटेलाइट्स भेजने होंगे, और तब हमें फॉरेन लॉन्चर्स का यूज करना पड़ता है, जैसे एरियान 5 एंड फैल्कॉन 9 का यूज करना पड़ता है हमें अगर ज्यादा हैवी सैटेलाइट भेजना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू सिंपल एग्जाम्पल। एक हमारे पास ये है LVM 3,
लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जो हमारे चंद्रयान मिशन 4 में, अगर हमने 4 भेजा तो 4 जो, अगर भेजा नहीं है, भेज रहे हैं हम चंद्रयान 4, जब वो जाएगा उसमें LMV-3 लगेंगे, दो लगेंगे, दो LMVs लगेंगे, तब जाके वो मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। बट वहीं पे अगर आप चाइना का देखो, लॉन्ग मार्च 5, वो अकेला इस सैटेलाइट को लेके जा सकता है, बिकॉज उतना हैवी वो लोड उठा सकता है। दैट इज वन चैलेंज। ठीक है। द मेन चैलेंज विच दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट, कि हमारे पास अगर डिमांड नहीं है, ठीक है, लॉन्च व्हीकल्स है, सैटेलाइट्स की डिमांड नहीं है, तो करें क्या? देयर इज अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम। दैट इज कि हमें पहले डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी, कस्टमर्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके वो लॉन्च व्हीकल्स लेंगे और इसरो को प्रोजेक्ट देंगे कि हमारा सैटेलाइट ऊपर भेजो। अब ये कैसे किया जाए? तो यहाँ पे बोला जा रहा है टू एडुकेट पोटेंशियल कस्टमर्स। अब ये पोटेंशियल कस्टमर्स कौन है? आप और हम, जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट यूज करेंगे। आप तो बोलोगे कि हमें तो पता है कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट यूज करना है, तो ठीक है, कोई कंपनी आएगी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट लॉन्च करेगी, हम उसका ले लेंगे इंटरनेट, बिकॉज उसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होगी। बट ये चीज़ फार्मर्स को, ये चीज़ लेबरर्स को, ये चीज़ जो हैंड्स ऑन स्किल्स पे काम करते हैं उनको, या जो लोअर रैंक्स में, या जो बाकी सब लोग हैं, उनको कौन बताएगा? वो कस्टमर्स कैसे बनेंगे? ठीक है। स्पेस टूरिज्म के कस्टमर्स कैसे बनेंगे? ह्यूमन ग्रेड फ्लाइट्स के कस्टमर्स कैसे बनेंगे? तो ये सब चीजें हैं जो एक चिकन एग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, और यही एडिटोरियल का डिस्कशन है, मेन पॉइंट। ठीक है। एंड यस, देयर इज वन मोर इशू, दैट इज लॉन्च व्हीकल इकोनॉमिक्स, कि लॉन्च व्हीकल का लाइफ स्पैन कितना होना चाहिए और RLVs पे कितना फोकस होना चाहिए, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स। ठीक है। जैसे ये जो हमारा लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, उसको अपग्रेड करना टू सेमी क्रायोजेनिक इंजन, एंड वो ट्रांसफर कर पाए 6 टन टू द जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है। वहां तक प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाना। दीज आर सम ऑफ द recommendations and suggestions which this editorial talks about, कि फ्यूचर क्या किया जा सकता है फ्यूचर में। वी कैन थिंक अबाउट दैट गवर्नमेंट में इवेंचुअली एग्जिट द लॉन्च व्हीकल बिजनेस सिमिलर टू द US मॉडल, और लॉन्च व्हीकल जो है वो प्राइवेटाइज हो जाए सारा, जैसे स्पेसएक्स कर रहा है अभी, वैसे ही गवर्नमेंट भी उसको प्राइवेटाइज कर दे। ठीक है। तो देयर आर ट्रांजिशन चैलेंजेस, कॉस्ट, सप्लाई एंड द green economy also is posing a challenge. And lastly, this question from UPSC Mains 2023 talks about the resource potential of India and its long coastline, and what are the natural hazards and what is the preparedness of India in these areas. तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, आंसर आप पढ़ लेना। क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहली चीज, कमेंट ऑन द रिसोर्स पोटेंशियल, कि रिसोर्सेज कितने हैं कोस्ट लाइन में। तो पहले आप रिसोर्सेज लिखोगे, एनर्जी रिसोर्सेज कितने हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कितने हैं, टाइडल एनर्जी रिसोर्सेज कितने हैं। ठीक है। हाईलाइट द स्टेटस ऑफ नेचुरल हजार्ड्स, नेचुरल हजार्ड प्रिपेयर्डनेस, कौन कौन सा नेचुरल हजार्ड आता है। ठीक है। उस नेचुरल हजार्ड को टैकल करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है। दो चीजें, दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, पहला है रिसोर्स पोटेंशियल, दूसरा है नेचुरल हजार्ड्स। लास्टली व्हाट यू कैन डू इज कि हम नेचुरल हजार्ड्स को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और रिसोर्स पोटेंशियल को हार्नेस कर सकते हैं फॉर बेटर कोस्टल इकोनॉमी। ठीक है। एक डिफरेंट सेक्शन निकल के आएगा कोस्टल इकोनॉमी का, जहां पे आप इसको वास्टली जो है डिस्कस करोगे, नॉट डिस्कस करोगे, एक ओपन एंड छोड़ोगे लास्ट में कंक्लूजन में, कि कोस्टल इकोनॉमी को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। या कोस्टल इकोनॉमी कैसे डेवलप कर सकते हैं। डन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेचुरल हजार्ड प्रिपेयर्डनेस कितनी है इंडिया की, लीगल फ्रेमवर्क क्या है हमारे पास, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, NDMA, SDMA, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, लोकल लेवल पे हम जो है मैनेजमेंट अथॉरिटीज है जो करती है ये क्या बोलते हैं इसको, डिजास्टर मैनेजमेंट करती है। अगर साइक्लोन आता है तो IMD उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम देगा, जिनके पास अर्ली वार्निंग सिस्टम है और अर्ली वार्निंग इश्यू करते हैं। सुनामी के लिए इनक्वाइस है, स्टॉर्म सर्च के लिए इनक्वाइस है, कोस्टल इरोजन के लिए नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च है। देयर आर गाइडलाइंस व्हिच आर बीइंग डेवलप्ड ओवर एंड गिवन
टू दी कोस्टल एरियाज अबाउट सुनामी साइक्लोन्स की क्या किया जा सकता है उस टाइम पे, बट हैव नॉट येट बीन डेवलप्ड फॉर अदर हैजार्ड्स। ठीक है, लाइक स्टॉर्म सर्ज, उस टाइम पे क्या किया जाए। तो these are the issues which are there. Lastly, what are the specific interventions? This is the main critical point जो आपको ऐड करना है और क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। ठीक है, कि क्या किया जा सकता है और स्पेसिफिक लेवल्स पे, लाइक उड़ीसा में साइक्लोन आया तो क्या किया गया। एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज यहाँ पे कोट करनी है। ठीक है, एंड लास्ट में सेंडाई फ्रेमवर्क जो डिजास्टर मैनेजमेंट पे है, कंक्लूजन में वो तो दिया गया है मॉडल आंसर में, बट यू कैन स्टिल टॉक अबाउट द development of coastal economy in this conclusion also. With this, I wish you all the best and thank you for joining in here. uh, have a good day ahead.